اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، 24 جولائی 2025۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس میسیج کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ تمام ملازمین تک پہنچے، خاص طور پہ ہمارے پنجاب کے ملازمین کے لیے، سندھ اور بلوچستان اور بالخصوص ہمارے خیبر پختونخوا کے ملازمین کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے 2020 میں جب یہ تحریک شروع کی، 21-20 کے بجٹ کے بعد جب معاملات نہیں بن رہے تھے، یہ الائنس جو ہے وہ وجود میں آیا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، اور وفاق میں تو ہماری فروری سے یہ جدوجہد چل رہی تھی۔ الحمدللہ گزشتہ پچھلے 7 سال کی بات کریں، 2014 سے لے کے 2020 تک تو تنخواہوں کے اندر صرف 60% اضافہ ہوا تھا، کیونکہ 10% اضافہ ہوا تھا اور 20 میں اضافہ نہیں ہوا تھا، جبکہ پیرالل ٹو ڈیٹ فروری 21 سے لے کے اگر ہم 25 کی آج کی بات کرتے ہیں تو تنخواہوں کے اندر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ابھی تک جو ہے 165% جو ہے تنخواہوں میں اضافہ کروا چکی ہے محروم ملازمین کے لیے، جس میں سے 95% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس، 70% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے۔ یہ میں وفاق کی بات کر رہا ہوں۔ اکارڈنگلی ہمارا اگر ہم چلیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جو ہمارے ملازمین ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہاں پہ نوٹیفیکیشن 30% کے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا کا جو پہلے 15% کا انہوں نے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا۔ تمام ساتھیوں کو ریکویسٹ یہ ہوگی کہ صرف اس میسیج کو آپ شیئر کرتے جائیں، اس ویڈیو کو ایٹ دی اینڈ کے اوپر جو ہے کوئی آپ کا سوال رہ جائے، کوئی آپ کے ذہن میں چیز ہے تو پھر آپ جو ہے میسیج اس میں کیجئے گا۔ فی الوقت اس کو جو آپ شیئر کریں گے تمام ملازمین تک جو کرنٹ صورتحال اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں جو 15% تھا اس کو 30% پہ لے کے جایا گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے 2017 کی پہلے انیشل بیسک پے پہ کیا تھا، جبکہ ہمارے قائدین نے جب احتجاج کی جو ہے ابھی کال دی ہے 28 جولائی کی، خیبر پختونخوا میں دھرنے کی کال دی ہے۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے، احتجاجی کیمپ ہے اس حوالے سے، جو کہ ڈیفینیٹلی پھر یہ دھرنے کی طرف جائے گا، جو میرے تک جو ہے وہ انفارمیشن ہے۔ قائدین کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ بہت سے ساتھی یہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، آپ کی خواہشوں کے اوپر کچھ نہیں ہونا۔ یہ جو بہت سے ساتھی یہ باتیں کر رہے ہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، یہ جو قائدین کر رہے ہیں آپ کے، یہ بالکل اسی طرح سے ہونا ہے۔ جہاں پہ لیک آف انفارمیشن یا کچھ ہے مرکز اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے، یہ 70% بھی یہ ساری چیزیں آپ کو انہی قائدین نے لے کے دی ہیں۔ ایک چیز تو بڑا واضح، میں واضح طور پہ خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی کیا اسٹریٹجی ہے، ہر ملازم ہر ساتھی کو نہیں بتایا جا سکتا کہ کیا چیز ہے۔ اگر 15% بھی آپ کو ملا ہے تو یہ 30% انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں ملے گا۔ قائدین کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی اپنی صفوں کے اندر ہوتے ہیں بہت سے معاملات جو ڈویژن اور وہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہاں پہ کچھ بندوں کو جو ہے پلانٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ الائنس میں آ کے بھی حرکتیں کچھ ایسی کریں کہ تقسیم ڈالیں اور خدا نہ خواستہ اس پہ امپلیمنٹ آئے وہ ساری چیزیں، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر 20 بندے لگا کے جو ہے وہ میسیجنگ کرنا شروع کر دیں، تو ہم نے ڈویژن اور اس کی طرف نہیں جانا۔ خیبر پختونخوا 28 تاریخ کی کال ہے، آج بھی چیئرمین سے بھی میری اور دیگر ساتھیوں سے بات ہوئی ہے، بابا یگیگا سے بھی ایک ان کی تصویر بھی شیئر ہو رہی ہے، جب احتجاج میں موجود ہوں گے ان کی طرف سے احتجاج کی کال ہے، تو یہ تمام قائدین کی مشاورت کے ساتھ ہے۔ فرد واحد کہیں پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے پھر سرکمسٹانسز آتے ہیں اور پھر ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں نکلتے، تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ کو میں خود بھی موجود ہوں گا۔ سندھ کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ الائنس کے ساتھی آئے، ان کی 21 تاریخ کو غالباً کال بھی تھی، ہمارا میٹنگ بھی ہوئی، سارے معاملات، اور وہ ایک میٹنگ کر کے گئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر۔ اس کے بعد تفصیلی مجھے نہیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں سندھ کے ملازمین کے لیے اور قائدین کے لیے، کہ آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اگر آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے چیزیں تقریباً فائنل سٹیجز میں ہے، جو قائدین کے ساتھ میں رابطے میں ہوں۔ باضابطہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان اور ہمارے سندھ کے اندر جو ہے وہ ہم نے باڈیز جو ہے تشکیل نہیں دی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اگیگا کی تمام ٹیم کو جو یہاں پہ موجود بھی رہی دھرنوں کے اندر، میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر نے سب سے پہلے بازی لی، اس کے بعد گلگت بلتستان کل بجٹ پیش ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے وہ معاملات تھے الحمدللہ
2 वहाँ पे हो गया तो बाकी सूबों के अंदर ये लाजमी होगा। बट पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब के मुलाजमीन के लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि आपका हक आपकी दहलीज पे ज़रूर पहुँचेगा। कुछ अनासिर थे जो कि शनाख्त किए जा चुके हैं, चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और जब तक पिछली चीज़ों का अजाला करके उसका लाहे अमल जो है उसकी तलाफ़ी ना की जाए और मामलात आगे चलें, गलतियों को तस्लीम ना करें, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। जब तक चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी मामलात आगे नहीं चल सकते। आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट डैट। बट आप लोग तसल्ली रखें, ऐसा नहीं है, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। और ये जो पंजाब का है 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये जहन में रखें कि जो पहले 25% था आल्दो के इनिशियल के ऊपर मिला, रहमान बाजवा उस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। जब 15% हुआ मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, मीटिंग का नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीजेज अपनी मौजूदगी में करवाई, साथियों को गाइड किया। आइंदा भी ये सारी चीज़ें आपकी दहलीज पे पहुँचेंगी। किसी की बात के ऊपर बच्चे को नज़र आ रहा है क्या मामलात हैं, जो चीज़ें हैं वो क्लियर की हैं। एक वीडियो जो है झूठों को चुप कराने के लिए सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जब ऐसी नौबत आएगी तो फिर कुरान पाक के ऊपर हलफ रख दे के जो है वीडियो भी आएगी और हम ओपन मुनाजरे का चैलेंज भी करेंगे। वफाक के साथ ही कि आपकी वजह से यू आर द मोस्ट बेनिफिशरीज, एक्सेप्ट जो है अपग्रेडेशन की बात की जाए। बट हमारे क्लास 4 के साथियों को मैं आगाह करता चलूं कि जो हमारे महरूम मुलाजमीन थे, हमने अपने ग्रेड 1 से 5 के मुलाजमीन को 2 स्केल, 6 से लेकर 15 तक 1, 16 वाले मुलाजमीन को 1 इंक्रीमेंट, LDC हमारा 11 के ऊपर, UDC जो है वो इस वक्त 13 के ऊपर है। असिस्टेंट जितने भी थे 2022 तक हम 16 के ऊपर ले गए, पुराने ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसको टाइम स्केल के साथ लिंक करें तो बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। तसल्ली रखें, एक एक चीज के ऊपर नजर है, टाइम आने के ऊपर सारी चीजें होंगी। एग्रीमेंट का हमने हिस्सा बनाया हुआ है, इसको तमाम मराद के साथ इंशाल्लाह ताला लेके देंगे। हायरिंग के हवाले से मुलाजमीन के सवालात हैं तो वो बताता चलूं कि जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन थी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स से हो गई, सेक्रेटरी तक गई थी, दोबारा से मीटिंग हुई, दोबारा से फाइल मूव हुई, लास्ट वर्किंग डे तक जो है हायरिंग की फाइल वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की टेबल के ऊपर थी। होप्स हो कि सेक्रेटरी तक पहुंची होगी, फाइनेंस तक पहुंचेगी तो उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। जो हमारे टीचर्स रिसर्चर्स का टैक्स रिबेट था 1% भी उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, पत्थर पे लकीर है, ये मेरा आपसे वादा है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कमिटमेंट की थी हम उनसे करवाएंगे। एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है एग्रीड, तो फिर एग्रीड होगा। 30/6/2025 तक की जो है वो इसके ऊपर ना लिमिटेशन कहीं पे थी ना, इंशाल्लाह ताला हम इसको तस्लीम करेंगे। हायरिंग के हवाले से मैंने बता दिया आप साथियों को। अब आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। इस वक्त करंटली गुज़श्ता 4 रोज से हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के साथी जो है यूटिलिटी स्टोर्स के साथी इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं, और डेफिनेटली अगर यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन तक ये मेरा आवाज़ पहुंच रही होगी तो वो इस पे होंगे कि हम इस्लामाबाद आए हैं तो बाजवा साहब वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है। तो इसका सवाल जो है आप अपने कायदीन से, मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगा कि कायदीन से आप पूछ सकते हैं कि रहमान बाजवा या उनके साथी वहाँ पे क्यों नहीं है। बिकॉज कि जब दावत नहीं दी जाएगी तो फिर वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं लगता है। राजा मस्कीन साहब की से जो है टेलीफोनिक बात हो गई है, क्योंकि जब धरना दिया गया था उस हवाले से मशावरत नहीं की गई यूटिलिटी स्टोर्स के। आल्दो के 20 तारीख को जब हमारा धरना था, इन तमाम चीज़ों के हवाले से साथियों को नौकरी से निकाला जा चुका था। उस वक़्त भी यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से 20 तारीख को नहीं 27 तारीख की कॉल दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि साथियों ने इकट्ठे कॉल क्यों नहीं दी थी। मुलाजमीन की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट लाइक पंजाब, ना उधर छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लिए मैसेज है कि 4 दिन से मुलाजमीन इधर आके बैठे हुए हैं, आप एक मीटिंग आपने इनकी नहीं करवाई और इनको आपने मूव भी नहीं करने दिया हेड ऑफिस से, ना ही डी चौक, ना ही प्रेस क्लब, ना ही पार्लियामेंट हाउस के सामने। तो इन मुलाजमीन को यतीम और मस्कीन ना समझा जाए। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस फेडरल का डेलीगेशन जो है, क्योंकि कायदीन से हमारी बात हो गई है, सुबह इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे वहाँ पे, क्या सूरत हाल है, क्या इश्यूज़ हैं, डिस्कस करके इंशाल्लाह ताला बेहतर जो लाहे अमल कायदीन कहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करवाने की हम कोशिश करेंगे। पंजाब के बार बार साथी बात कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। देखें, मैं इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि वो क्या कहते हैं कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले
ऐसे सुखम फरोश या वतन फरोश को मर जाना चाहिए? इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं, उसके जवाबात अभी आना बाकी हैं। तो दिस इज़ द करंट सिनेरियो। हमारी कमेटीज़ जो है कुछ बननी थी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, वो नहीं हो सकी। रूल 17A प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज जो है एग्रीमेंट का हिस्सा है, एक मीटिंग उसके ऊपर हो चुकी है, क्योंकि बीच में मुहर्रम थे और ये प्रोविंसेस के हवाले से मामलात चल रहे थे, तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया जा सका। दोबारा से कमिंग वीक में, कल तो जुमा है, कमिंग वीक में इसके ऊपर हम अपना दोबारा से स्टार्ट लेंगे। ब्रीफ इससे पहले इमरान सनाउल्लाह साहब को हम दे चुके, जो जो हमारी चीज़ें थी। साथ ही भरपूर तैयारी रखें, तैयारी के साथ तसल्ली भी रखें। इंशाअल्लाह ताला ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पहले भी किया है। जिस तरह के स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि जो साथी दावे करते हैं, बातें करते हैं, मुझे आज 2 साथियों ने बहुत अच्छे मशवरे दे रहे थे कि इदारे जो हैं वो तो इस तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन ये जो है ई फाइलिंग का सिस्टम आ गया, तो ये मामलात ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए। बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो जो मशवरे देने वाला मेरा भाई, मेरा साथी था, मैंने उससे पूछा कि यार एहतजाज में कितनी दफ़ा आए हो? तो उसने कहा एहतजाज में तो नहीं आया। मैंने कहा ये सारी चीज़ें ली हैं? उन्होंने कहा हाँ ली है। आज भी एक साथी गालबन इस्लामिक यूनिवर्सिटी से कॉल थी, बड़ा लेक्चर दिया, मसाइल बताए प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, इदारा रेगुलराइजेशन के हवाले से। जब इदारा पूछा सारी चीज़ें, एहतजाज में आया, कहते हैं हाँ। मैंने कहा कलमा पढ़ के बोलो। तो उन्होंने कहा मैं कलमा पढ़ के झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक दफ़ा भी नहीं आया, अब आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। तो यहाँ पे चोरी वाले मजनू और कुर्बानी वाले मजनू जो हैं वो, और मैं पहले भी कहानी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। मजनू जब लैला को ढूंढता हुआ गया, इसको शेयर कीजिएगा, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द जो व्लॉग है, कि मजनू जब लैला के गांव में पहुंच गया था, उसको ढूंढते ढूंढते, तो लैला को खबर हुई, उसने अपनी नौकरानी को भेजा कि इसको छुपाओ, मजनू को, मेरे भाई मार ना दें या रिश्तेदार। मजनू को उन्होंने एक मौलाना साहब का जो हुजरा होता है उसमें छुपाया। लैला रोज़ाना चूरी बना के भेजती थी और वो मजनू को देते, मगर मजनू तो लैला के गम के अंदर दुबला से दुबला और पतला से पतला होता जा रहा था। नौकरानी रोज़ाना आके बताती। तो एक दिन फिर लैला ने कहा कि ये खंजर ले जाओ, उस ट्रे के अंदर जो चूरी थी उसने खंजर भेजा, और नौकरानी को कहा कि मजनू को कहना कि अपनी रान से गोश्त का टुकड़ा मुझे भेजे। तो उसकी नौकरानी जब लेके वहां पे पहुंची, ट्रे मौलवी साहब को दी, उन्होंने कहा जी आज फिर चूरियां और हलवा है, खाने लगे। तो उन्होंने कहा जी आज नहीं है। लैला ने कहा है कि आज इसकी रान का मुझे टुकड़ा चाहिए, तो मजनू को बोलें। तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो चूरी वाला मजनू हूँ, कुर्बानी वाला मजनू जो है वो रान वाला अंदर है। यानी कि वो चूरी और जो खाना था वो मौलाना साहब जो है वो खुद खा जाते थे, मजनू तक नहीं पहुंच रहा था, इसलिए दुबला हो रहा था। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे सोशल मीडिया वाले मजनू हैं, कुर्बानी वाले मजनू बनना है, आपको दोबारा कॉल देंगे, तमाम तर चीज़ें जहन में रख के आएंगे हम। पंजाब की गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पे मेरा ये मैसेज है कि उधार है, बाकी तो सारे मामलात हुए जो हमारे हेल्थ के मुलाजमीन के साथ किया गया, जो एक इतने बड़े क्राउड्स को आपकी गारंटी के ऊपर हुआ। हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, वापस आने के लिए नहीं आएंगे और टकराने के लिए आएंगे। मैं बड़ा क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं। तो कोट लखपत जेल या दूसरी जितनी भी जेलें हैं आप एडवांस के अंदर खाली करवा लीजिएगा, ये पंजाब के मुलाजमीन का हक है और इनको लेके देंगे। वन थिंग इज वेरी क्लियर, कायदीन को भी मैं बता दूं, ये मुज़ाहरों से ना काम पहले हुए हैं ना आइंदा होंगे। तहरीकें पहले भी चली, क्या कमियां कोताहियां थी बहुत अच्छी तरह पता है, तमाम साथियों को पता है। और जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट नेग्लिजेंस। मैं बिकने की बात नहीं करूंगा माजरत के साथ, ना हुकूमत की इतनी औकात है और ना ही किसी साथी की इतनी औकात है कि इनको कोई खरीद ले। कमजोर और गलत फैसले, जल्दबाजियां, क्रेडिट लेने के चक्कर में मुलाजिम जो है आज इस जगह तक पहुंचे हैं। पिछली गलतियों कोताहियों को छोड़ के पावर दिखाने की बजाय अमली तौर पे कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। और ये तमाम मुलाजमीन ख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो या पंजाब के अंदर हो, कुर्बानी दे के ये मिलेगा। कश्मीर में बिजली के हवाले से जो तहरीक थी उसकी जिंदा मिसाल है, 3 रुपए यूनिट वहां पे मिल रहा है। बलोचिस्तान वालों की कुर्बानियां, मुलाजमीन की मैं सैल्यूट पेश करता हूं। कायदीन की भी अब साबित कदमी, जेल तक तो थी, उसके बाद मुज़ाकरात के बाद क्या मामलात हैं, बलोचिस्तान में भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है बलोचिस्तान के मुलाजमीन की कुर्बानी उनके कायदीन रायगा नहीं जाने देंगे।
सिंध के मुलाजमीन को इकट्ठा होना पड़ेगा, जो 3 धड़े ये बने हुए हैं कि जी मैं ताकतवर हूं, मैं ये ताकतवर हूं, इस तरह से नहीं होगा। और सेम इन द पंजाब की जितनी छोटी बड़ी यूनियंस एसोसिएशंस हैं, अकीका की आइंदा जो भी मीटिंग होगी वहां पे बैठ के इंशाल्लाह ताला जो है वो लाए अमल मेरी जाती राय के अंदर जो है वो तय होना चाहिए। मैं साथियों के साथ राब्ते में भी हूं, बट जो भी फैसला होगा पंजाब के कायदीन करेंगे और वफाक समेत तमाम साथी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे, मशावरत भी करेंगे, सपोर्ट भी देंगे। मशावरत की अगर किसी ने ज़रूरत समझी, अभी तक तो ज़रूरत नहीं समझी गई, बाकी तमाम साथी राब्ते में इंशाल्लाह ताला पंजाब के मुलाजमीन समेत पाकिस्तान के किसी मुलाजिम को न पहले मायूस किया है ना आइंदा करेंगे। असल लड़ाई हमारी अभी बाकी है, पेंशन इस्लाहात, रेगुलराइजेशन, रूल 17A, ये वो तमाम चीज़ें हैं, प्राइवेटाइजेशन, जिसके ऊपर पहले कुछ हम हासिल करेंगे तो निकलेंगे। और गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि जी पंजाब से उठ के कोई बोले जी वो हमें तो नहीं मिला, हम तो नहीं गए, और तुम तो घरों में बैठे हुए हो, जो यहाँ पे आए उन्हें कायदीन के ऊपर यकीन है। 5,000 10,000 मुलाजिम आया होगा, तो जो 9,90,000 घरों में बैठा हुआ था वो बोलेगा जी हम जाते हैं या नहीं। जिसने एक भी कदम चला है उसके किराए जो हैं वो जो पहली चीजें हैं 6% से 10% पे वो पूरा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी ये मजीद चीजें हमने लेनी है, आपकी झोली में डालनी है। सिर्फ फरवरी 2021 की सैलरी स्लिप देखे और आज की डेट में इस इजाफे को निकाल के भी देखेंगे तो 125%, 165% पे हो चुका है। ये चेक करें कि क्या मिल रहा है। हायरिंग के हवाले से अपडेट बता चुका हूं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मायूस न पहले किया है न करने देंगे। और कुछ साथियों के लिए सबसे आखिर में कि मेरे किरदार पे उंगली को उठाने के लिए, मेरे किरदार पे उंगली को उठाने के लिए, खुद को मजबूत बना मुझको गिराने के लिए, तो जो हवारी हैं 2-2 4-4 जिनकी दुम के ऊपर पाँव आया हुआ है, वो जो पोस्टें कर रहे हैं या कुछ है और ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ उनसे कहिएगा कि अपने कायदीन को बैठाएं और कुरान के ऊपर हलफ लें कि जेल के बाहर से जब कहा गया था कि हम बैठ के मीटिंग तय करेंगे, मीटिंग में लाए अमल तय करेंगे, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि स्कूल भी खोले और उसी दिन के जी पॉलिसी भी मैं दूंगा। किसने कहा था कि आप स्कूल खोलें? इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा, चीज़ें जब तक पिछली दुरुस्त नहीं होंगी, गलतियों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे जी कि आगे चल के मामला ठीक होंगे, कभी भी नहीं होंगे। इनको ठीक भी करेंगे, गलतियों को भी सुधारेंगे भी, साथियों को भी समझाएंगे और फिर साथ लेके चलेंगे। बसूरत दीगर फिर जिस्म का कोई हिस्सा अगर कैंसर ज़्यादा हो जाए या कुछ, तो फिर मजबूरी के तहत काटना पड़ता है, क्योंकि तमाम जिस्म जो है उससे फिर नुकसान उसका होने का खतरा होता है। और पंजाब के तमाम मुलाजमीन का नुकसान किसी सूरत में नहीं होने देंगे। इलाज हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज फिर ऑपरेशन है।